So in this video I'm basically going to be talking to those people, those students mostly जिनका ना basically ये target होता है कि यार कल को हमने इंडिया छोड़ के जाना है, हमने किसी बाहर कंट्री में जाना है, एज स्टूडेंट्स जाना है एंड वहाँ पे कल को जाके सेटल होना है। हमारा मेन गोल वहाँ पे जाके सेटल होने का, वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेने का, PR लेने का है। एंड बिकॉज ऑब्वियसली अपन मोस्टली दो ही कंट्रीज़ में कंफ्यूज होते हैं, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज यही दो कंट्रीज़ हैं जो PR देती हैं। बाकी कंट्रीज़ या तो अपने हिसाब से बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास बंदों के हिसाब से या तो बहुत महंगी होती हैं या फिर PR नहीं देती हैं, सच एज US एंड UK। तो बेसिकली जब भी हम देखते हैं वी लुक एट जस्ट 2 कंट्रीज़, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, एंड हमारा मेन टारगेट यही होता है अमंग्स दीज 2 कंट्रीज़ यू हैव टू चूज़। So in this video I'm just going to be comparing Australia and Canada as targets for students who want to go there, settle, study and then eventually settle down. My name is Shaurya Bansal and I am a master's student at the University of Melbourne. So in this video basically I'm going to be talking about the main 5 factors which I believe I did not consider while choosing a country. I am currently in Australia and I'm going to be talking about those 5 factors जो मुझे लगता है कि भाई everybody should consider before they choose their country, कि तुम्हें किस country में जाके settle होना है। And I regret not taking a decision on those, and now that I've been living in Australia for the past 6-7 months, I believe that those factors really impact you and you should definitely consider them, and because these are long-term consequences, okay? So you should definitely consider them before you choose a country for yourself, which is why I am going to give them to you in this video. Okay, for starters, as most of you would already be knowing, कि Australia has just 7 cities. Those 7 cities are Perth, Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbane and Hobart. These are just the main 7 cities in Australia. इनके सिवा most of Australia is completely barren land. ठीक है, so in case you have to come to Australia, you definitely have to choose amongst these 7 cities, and mostly international students सिर्फ 2 cities choose करते हैं, या तो Melbourne या Sydney. I'm in Melbourne at the moment, and because these 2 cities are the ones that have the best universities, that have good places to study, so mostly students यही choose करते हैं. And as compared to that, Canada has a lot of better options. Canada has a greater area, it has greater number of cities as compared to Australia, so obviously giving you more options as to where you can go, where you can settle down. Canada would definitely be a better option in this scenario. Coming to financials, Canada's GDP is nearly $2 trillion. $2 trillion. As compared to Australia's GDP is just $1.3 trillion. So basically what GDP tells us कि इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी होने वाली, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने को, कितना हमारा बेसिकली नेट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होंगी आफ्टर वी स्टडी। ठीक है, भूखे नहीं मरना है अपन ने जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाना है, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन। तो हम डेफिनेटली दैट प्रूव्स दैट कैनेडा वुड ऑब्वियसली हैव बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऑल्सो इट बीइंग इन द वेस्ट, right next to America. Most companies, as we know, are American, so companies would definitely prefer to go to Canada and pick up people from Canada to go to the US for better job opportunities, better financials. So in that scenario, I believe also obviously Canada would be a better option as compared to Australia. अगर अपन मौसम की बात करें, डेफिनेटली मेलबर्न हैज़ अ ग्रेट वेदर एज़ कम्पेयर टू एज़ यू नो कि कनाडा में बहुत ठंड पड़ती है। डेफिनेटली कनाडा इज़ अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का मौसम बहुत अच्छा है। मेलबर्न का वेदर इज़ वेरी वॉलेटाइल, नो डाउट, बिकॉज यहाँ पे कभी भी ठंड पड़ जाती है, कभी भी गर्मी पड़ जाती है। एज ए सेड 4 सीजन्स इन अ डे। मेलबर्न का मौसम बहुत वॉलेटाइल है। कंपैरेटिवली सिडनी का मौसम बहुत अच्छा है, यानी इट्स एटलीस्ट स्टे स्टेबल फॉर अ फ्यू कपल ऑफ डेज। तो उस हिसाब से कहेंगे कि भाई मौसम अच्छा होता है ऑस्ट्रेलिया का। एंड कनाडा में डेफिनेटली एज वी ऑल नो ठंड बहुत पड़ती है, बट दैट्स अगैन इफ़ यू गो टू दोज पर्टिकुलर प्रोविंसेस, पर्टिकुलर स्टेट्स अगर तुम जाओ तो वहाँ पे ठंड बहुत पड़ेगी। लेकिन अगैन ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल हैज़ अ ग्रेट वेदर, विच इज़ वाई यू शुड डेफिनेटली कंसिडर ऑस्ट्रेलिया एज वन ऑफ योर ऑप्शंस। नाउ कमिंग टू द वर्स्ट पार्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, टैक्स ब्रैकेट्स। ऑस्ट्रेलिया में 45% तक टैक्स ब्रैकेट जा सकता है, 45%। ऑस्ट्रेलिया का टैक्सिंग सिस्टम इज़ अ लिटिल डिफरेंट टू एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जैसे इंडिया में इफ़ यू आर अर्निंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनकम, तो तुम किसी एक पर्टिकुलर टैक्स स्लैब ब्रैकेट में ही फॉल करते हो। यहाँ पे ऐसे सिस्टम नहीं होता, लेकिन केस यू आर अर्निंग मोर देन से $45,000, तो तुम्हें एक फिक्स अमाउंट ऑफ सम एज टैक्स देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर से अबव 45,000 तुम्हारे पास जितनी इनकम होगी, यू गोना पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सम ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। दैट्स नॉट द केस फॉर कैनेडा। कैनेडा की हाईएस्ट टैक्स स्लैब ब्रैकेट इज 33%. 33% is the highest. Australia ki goes up to 45%. Most of what you're earning just goes straight away to tax. ठीक है, now that I realize that after I started working full time. Now I'm working full time as well as being a student because मेरी break चल रही है. So I'm working full time, and when I fall under that tax slab bracket, मेरे को पता लगता है कि भैया बहुत टैक्स देना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। कनाडा की हाईएस्ट टैक्स स्लैब ब्रैकेट तब जाती है when you're earning more than say $200,000.
विच इज़ अ लॉट। इंडिया के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ रुपये हो गया। इफ़ यू अर्निंग मोर देन दैट तब जाके तुम हाईएस्ट टैक्स स्लैब ब्रैकेट में पहुँचते हो। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। यू ईजिली रीच द हाईएस्ट टैक्स स्लैब ब्रैकेट एंड यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ टैक्स, विच इज़ अ ग्रेट ड्रॉबैक विच आई पर्सनली फेल्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया। कमिंग टू द फाइनल फैक्टर विच फॉर मी वाज यूनिवर्सिटीज़। मेरे को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना था, ठीक है। आई एम स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न विच इज़ रैंक्ड 14th इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जस्ट हैज़ 6 यूनिवर्सिटीज़ विच आर रैंक्ड इन द टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड। कैनेडा हैज़ 31 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। सो इन केस तुम्हारी एक में नहीं होता, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी इन कैनेडा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर गिन चुन के सिर्फ 6 ही हैं। एंड इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अ रियली गुड यूनिवर्सिटी, Australia just has 3 options, which is UniMelb, which has University of New South Wales, और ANU। ये 3 options हैं if you want to study from a very well-renowned university। कैनेडा में हम सबको पता है there are a lot of other options which we can consider। तुम्हारी एक में नहीं हुई, तुम दूसरी के अंदर भी जा सकते हो, which I felt is a great factor because obviously companies यार जब तुम्हें उठाती हैं they see कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, कि तुम में कितना दम है, कि तुम क्या क्या उखाड़ सकते हो। So अगर तुम if you're studying from a good university, they will prefer you over anyone else in the options if in case they have। So I believe that these are the factors that I should have considered before I chose any one of them। मेरे को regret नहीं है, I'm not gonna say that I regret it। I'm really happy wherever I am, but these are the factors that definitely you guys should consider in case you're planning to study abroad। This was Shaurya signing off।